So sign convention, W is what? Negative. When it is negative, when system work on the surrounding, system surrounding पे काम कब करेगा? मैंने आपको एग्जांपल बताया here. What is the example? Like this one. Decomposition of hydrogen peroxide, liquid convert into the gas, then volume will increase, gas will expand, and system will work on the surrounding. In this case, when gas expand, then our W will be what? Negative. Now, second thing is what? When I'm considering here, suppose surrounding work on the system. Okay, how to write it? See. Now this case, surrounding work on okay, sorry. So here is what? Surrounding work on system. जरा ध्यान से देखना. ठीक है. Surrounding work on system. In this case, we can say that what? Gas compressed. Right? Compression of gas. Compression of gas कब होगा? मैंने बताया आपको. कोई ऐसा कोई रिएक्शन हो रहा है जिसमें गैस कन्वर्ट हो रहा है किसमें? सॉलिड में. राइट? Like that, formation of ammonium chloride from the ammonium and HCl, that is from what? Solid. So gas convert हो रहा है solid में, definitely volume decrease करेगा. Compressed होगा means atmospheric pressure will increase than the internal pressure. तो और मैंने बताया था आपको previous lecture में, this internal pressure is called what? Driving force, and opposing external pressure, otherwise atmospheric pressure is considered what? Opposing force. So in this case, opposing force is greater than the driving force. Gas will compress, volume decrease, and can say that surrounding work on the system. So in this case, when surrounding work on the system, our W will be what? Positive. Remember this, huh? Similarly, for heat, what will consider for the heat? Look at here. When I'm going to consider this heat, so if I am supplying heat from surrounding to system, right? See, यहाँ पे मैं surrounding से system में supply कर रहा हूँ heat, right? आ रहा है समझ में आपको? That is what? Heat absorb. हम लोग कह सकते हैं this is called what? Heat absorb. Right? Heat absorb. System ने surrounding से heat absorbed किया. It means what? In this case, our Q will be what? Positive. Plus Q. Right? And second case, when heat release from system to surrounding, right? Heat release. Heat release. So in this case, our Q will be what? Negative. एकदम दिमाग में ये बिठा लो बेटा, ये दोनों का साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है. W पॉजिटिव और निगेटिव कब होगा? अगर गैस एक्सपांड कर रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है सराउंडिंग पे, तो W नेगेटिव. सराउंडिंग वर्क कर रहा है सिस्टम पे, गैस कंप्रेस्ड हो रहा है, देन W इज व्हाट? पॉजिटिव. हीट एब्सॉर्ब कर रहा है सिस्टम, देन Q इज व्हाट? पॉजिटिव. एंड हीट रिलीज कर रहा है सिस्टम, देन Q इज व्हाट? नेगेटिव. इज इट क्लियर? इतनी बातें समझ में आ गई आपको? Yes, sir. Yes. Now see one derivation here. That is called what? You can take the screenshot also, no problem. Take it.
Second, no beta, this is the part of chemistry. केमिस्ट्री का ये थर्मोडायनेमिक का पार्ट है, इट इज नॉट मैकेनिक मैकेनिज्म चैप्टर नहीं है. दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ मैकेनिज्म चैप्टर, दिस इज पार्ट ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री बोर्ड लेक्चर थर्मोडायनेमिक. ओके, सी आफ्टर दैट see this part. I'm going to explain this. Expression for pressure volume work. छोटा सा expression है, इससे related numerical भी आता है. So now see this. Expression for pressure volume work. Pressure volume work. ठीक है, P into V work. Huh? Yes, no problem, Pratiksha. You can leave. Thank you, sir. Yeah. Okay, see this. Expression for pressure volume work. अब जरा देखो यहाँ पे एकदम इजी सिंपल एक्सप्रेशन कैसे करना है आपको, यहाँ पे ध्यान दो. फर्स्ट आई एम टेकिंग द सिलेंडर, लाइक दिस. थोड़ा सा स्ट्रेट बनाने की कोशिश करता हूँ. वेट, ठीक है, देखो यहाँ पे this is the internal area cross section, that is called what? Cross section area. First I am taking this piston here. This piston is what? Weightless and frictionless, right? And here I am taking this gas. Okay, its initial volume is what? V1. Volume is what? V1, right? Here is the pressure, external pressure. This is called what? P EXT, external pressure, and here this is what? Internal pressure, P internal. ठीक है, and cross section area of this cylinder is what? A. ठीक है. So listen, first of all we are taking a gas. This is the gas enclosed in the cylinder which is fitted with the frictionless and weightless piston, right? And initial volume of this gas is what? V1, and cross section area of this cylinder is what? A. Is it right? इतनी बात समझ में आ गई आपको? Yes. See, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा डेरिवेशन के लिए. तो कंसीडर gas enclosed in cylinder whose cross section area is A, capital A. हाँ, ठीक है. It is fitted with weightless and frictionless, right? Piston. Now initial volume of gas V1. Okay. After that, just consider if I'm decreasing the external pressure, right? If I'm decreasing the external pressure, then
definitely gas will expand because of the, in this case, suppose here is the equilibrium stage where external pressure and internal pressure is what? Same. So no any movement in the piston. It remains constant. But suppose external pressure decreases and gas expand, because of the expansion of gas, piston will move in the upward direction, right? When gas will expand, then piston will move in the upward direction, and consider its distance which is traveled by this piston is what? D. कितना distance travel किया बेटा? D. So we write here, if external pressure decreases, then gas expand and piston move in upward direction. Right? Piston move in upward direction. Right? And travel distance, I'm making a distance travel by piston is D. Okay. So piston will move in upward direction and distance travel by this what? D. Now just consider, according to the definition of work, okay, according to definition of work, क्या होता है work यहाँ पे? W is equal to F into D. Force into displacement. I hope you understood this part. Force into displacement, that is called what? Work. So work is equal to what? Force into displacement. Right. Now what is this force? Where? See this. We can write here. Where force is equal to what? Pressure into area. Pressure into area. Right. So we can say that F is equal to P into A. Right. Pressure into area. That is what? Force. Now we can substitute the value of this F in the above equation. So therefore we can say that W is equal to what? P into A into D. I hope you understood this part. Okay. Now just consider here. What is this A into D? Look at it. This much area is considered as the A into D. This is the cross section area A, internal area of this cylinder, and D is what? Distance traveled by this piston. So this whole area, this area is considered as what? A into D. क्या इतनी बातें समझ में आ गया आपको? This is what? A into D, right? This much area is what? A into D. Now see here. Initial volume is what? V1 and the final volume is what? V2 because of the expansion of gas. So we can say that this much area is what? V2 minus V1. When we subtract V2 and V1, then what will get here? This much area, right? And this much area is also called what? A into D. So therefore, right? See, what we write here? Where A into D is equal to what? V2 minus V1. That will be equal to what? Delta V. Therefore, we can say that this is our derivation. Therefore, we can say that, what will say that? W is equal to P into delta V. I hope you understood this part. ये derivation हो गया, right? Now, according to sign convention, according to IUPAC sign convention, what we know that? Sign convention, right? If gas expand, then W is what? Negative, right? Hai? Therefore, we can say that W is equal to minus P into delta V.
अगर गैस एक्सपांड कर रहा है, राइट, सिस्टम वर्क ऑन द सराउंडिंग, then our W is what? Negative when we write this part. So we can say that in this case, okay, in this case we can say that, sorry, system work on surrounding, right? In short, we can say that gas expand. And second condition क्या हो गया यहाँ पे बेटा? This is the first condition. What will be the second condition? Second condition is what? Gas, if gas compressed, huh? If gas compressed, right? So W क्या होगा यहाँ पे? Positive. Is it clear? Sorry, positive. So यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे? W is equal to plus P into delta V. Note down this part. Huh? In this case, we can say that surrounding work on the system. ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, क्योंकि इसके बाद का जो डेरिवेशन है इसी से रिलेटेड है, दैट इज व्हाट? मैक्सिमम वर्क. ठीक है, so concept of maximum work, after that I will explain the derivation of the maximum work. ठीक है, just note down this part. This pressure will be what? External pressure. Huh? Just note down this part. ऊपर का ले लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया है. This part you can take it. मनीषा समझ में आ रहा है बेटा? यस सर. अब्दुल, यस, गुड. हाँ सर समझ में आ रहा है. Okay, good. Who is this new one? E8, E7, AF, 9B. Who is this? Tell me your name, beta. Sir, I am Yukti Pandya. Okay, beta. So better to join with your name, huh? हाँ, yes sir. Okay, very good. No issue. Chalo. If you know your name, then we can interact you, right? Na? I can interact during the lecture. Okay, just take this part. Okay. चले आगे. यस सर. Okay. Now एक टर्म आता है यहाँ पे बेटा, फ्री एक्सपेंशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री एक्सपेंशन? देखते हैं यहाँ पे. फ्री एक्सपेंशन. सी, मैंने आपको बताया यहाँ पे कि this is depend upon the type of reaction and their physical state, how it is changed during the chemical reaction, and that will affect on the volume of gas, right? Suppose in this case a reaction takes place in which volume of gas increases, right? Suppose solid will convert into the gas during the reaction, or liquid convert into the gas. So definitely gas will what?
expand. So in this case, this driving force, I told you this internal pressure considered as what? Driving force. Driving force. And this external pressure is what? Opposing force. But suppose this reaction takes place in the vacuum. Are you getting my point? If this reaction takes place in vacuum, so look at here, in external pressure is equal to 0 in vacuum. आपको मेरी बात समझ में आ रही है? Right? If this reaction takes place in vacuum, so external pressure कुछ भी नहीं है, 0 है. वैक्यूम में तो कोई प्रेशर रहेगा नहीं. तो ये गैस एक्सपांड करेगा जब इंटरनल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, तो उसको अपोज करने के लिए बाहर कोई प्रेशर नहीं है. राइट? यहां पे अपोजिंग फोर्स 0 है. दिस इज व्हाट अपोजिंग फोर्स. एंड अपोजिंग फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? 0 इन वैक्यूम. क्योंकि वैक्यूम में एक्सटर्नल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वहां पे कुछ भी नहीं है. राइट ना? तो ये आराम से एक्सपांड करेगा विदाउट एनी अपोजिंग फोर्स. दैट टाइप ऑफ एक्सपेंशन ऑफ गैस इज कॉल्ड व्हाट? फ्री एक्सपेंशन. राइट? और फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे अपोजिंग फोर्स नहीं है. तो इन दिस केस अगर P एक्सटर्नल, मैंने फॉर्मूला बताया आपको एक्सपेंशन के लिए, W इक्वल टू माइनस P. ये जो P होता है कैसा होता है? एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V. और जब ये 0 हो गया, इफ दिस वन इज व्हाट? P external is equal to what? 0, then can say that W is equal to what? 0. तो फ्री एक्सपेंशन अगर हो रहा है, वैक्यूम में ये कोई रिएक्शन हो रहा है, तो उस समय वर्क क्या होगा? 0 होगा. क्योंकि कुछ काम करना ही नहीं पड़ेगा ना इस सिस्टम को. ऊपर कोई अपोजिंग फोर्स है नहीं, तो सिस्टम के जो गैस बन रहा है, जो गैस फॉर्म हो रहा है, वो आराम से एक्सपांड करेगा. क्योंकि ये जो वेटलेस और फ्रिक्शनलेस है, राइट? और ये आराम से ऊपर जाएगा क्योंकि अपोजिंग फोर्स वहां पे 0 है. दैट्स व्हाई W इज इक्वल टू व्हाट? 0. वर्क क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा. ठीक है? राइट? So W is equal to 0 if gas, can note down this point, if gas expands freely in vacuum. Note this point. Done, sir. Very good. Now I'm going to explain concept of maximum work. ठीक है? Concept of maximum work. उससे रिलेटेड, इस फॉर्मूला से रिलेटेड, ये जो फॉर्मूला है इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो मैं न्यूमेरिकल एक साथ कराता हूँ इसका, मैक्सिमम वर्क का और ये. ठीक है? तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होगा आपको. मैं आराम से कराता हूँ दोनों का. पहले एक पर एक्सपेंशन देख लेते हैं, मैक्सिमम वर्क देख लेते हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसका डेरिवेशन भी आता है एग्जाम में. हाँ, अल्टरनेट ईयर पे आता ही आता है इसका डेरिवेशन 2-3 मार्क्स के लिए. जरा ध्यान से देखना यहाँ पे क्या होता है. तो फर्स्ट वी कंसीडर कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क. क्या है कॉन्सेप्ट मैक्सिमम वर्क का? I'm going to explain this concept of maximum work. ठीक है? See, what is concept of maximum work? वर्क सबसे ज्यादा कब होगा? जरा जस्ट समझो इसको. मैंने एक एग्जांपल बताया था आपको, राइट? कि अगर अपोजिंग फोर्स, सपोज किसी चीज को आप यहाँ पे पुश कर रहे हो, राइट? यहाँ पे इसको, यहां से आप इसको धक्का दे रहे हो, राइट? यहाँ से आप इसको पुश कर रहे हो और यहाँ से कोई अपोज कर रहा है इसको. यहाँ पे अपोजिंग फोर्स और ये आप कर रहे हैं ड्राइविंग फोर्स. ड्राइविंग फोर्स कॉन्सेप्ट समझे इसको. हाँ, ठीक है?
अगर ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स दोनों इक्वल है तो ये जो सब्सटेंस है इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा। क्योंकि आप यहाँ से धक्का दे रहे हो बेटा और यहाँ से अपोज कर रहा है कोई, और दोनों का प्रेशर सेम है, दोनों के फोर्स सेम है, दोनों की एनर्जी सेम है, तो यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होगा। बट अगर इन दोनों में बहुत ही कम डिफरेंस है, जरा बहुत अच्छे से समझना यहाँ पे, इफ ड्राइविंग फोर्स, कॉन्सेप्ट एकदम समझना यहाँ पे, ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स differ by infinitesimal, ये वर्ड क्या होता है देखो यहाँ पे, इनफाइनाइटसिमल मींस व्हाट, वेरी वेरी लेस। एक चीज समझो यहाँ पे, जो डिफरेंस होता है वो कितने तरह के हो सकते हैं, जरा समझो यहाँ पे, इस बात को समझो अच्छे से। व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर, डिफरेंस कितने टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। सी सपोज एक है यहाँ पे डेल्टा, ऐसा मैं लिखता हूं पहले। एक डिफरेंस, जैसे किसी भी सब्सटेंस को मैंने यहां से हटा के यहां पे रख दिया, तो ये डिफरेंस कैसा हुआ, रियल हुआ, ऑब्जर्वेबल हुआ, राइट है, एंड कैलकुलेटिव हुआ। जरा समझो यहाँ पे, अगर किसी भी सामान को मैंने यहां से उठा करके यहां पे रख दिया, तो यहां से डिस्टेंस ये ट्रेवल किया यहां तक, तो ये डिफरेंस कैसा बेटा, रियल में है, ये डिफरेंस कैसा है, रियल में है। इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, हम देख सकते हैं यहां से यहाँ पे मूव हो रहा है, और कैलकुलेट कर सकते हैं कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। इस टाइप के डिफरेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। ऐसा डिफरेंस जो रियल में होता है हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। बट ऐसा डिफरेंस जो रियल में होता है, राइट, हो रहा है बट हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, कैलकुलेट कर सकते हैं। जरा समझो मेरी बात को, मैं क्या बता रहा हूं आपको। जैसे ये देखो ना यहाँ पे HCl, आपको पता है कि दिस इलेक्ट्रॉन इज नॉट प्रेजेंट इन द सेंटर, स्लाइटली मूव टुवर्ड्स द क्लोरीन। बट क्या ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो, इट इज वेरी डिफिकल्ट, एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल पे इसको ऑब्जर्व करना नहीं पॉसिबल है। बट हो रहा है रियल में, थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, और इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसको, डाइपोल मूवमेंट। सो दिस टाइप ऑफ डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस डेल्टा, जो कि रियल में हो रहा है, ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, बट कैलकुलेट कर सकते हैं। बट ऐसा डिफरेंस जो कि हाइपोथेटिकल है, बहुत कम है, रियल में नहीं है, ऑब्जर्वेबल नहीं है, सिर्फ हम कैलकुलेशन में यूज करते हैं, देन इट इज कंसीडर्ड व्हाट, डी। एंड दिस डी इज कंसीडर्ड व्हाट, इनफाइनाइटसिमल स्मॉल अमाउंट। इसी को हम कहते हैं बहुत कम अमाउंट, इनफाइनाइटसिमल स्मॉल अमाउंट। समझा आपको मेरी बात? और एक डिफरेंस हो जाता है रो, जो कि एकदम कुछ नहीं होता है, हाइपोथेटिकली हो जाता है। तो मैं इस डिफरेंस पे बात करना, जो ओनली कैलकुलेटिव होता है। आपको आ रहा है समझ में? यस, Yes, sir. गुड। ठीक है, चलिए। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस डिफरेंस, डी, इनफाइनाइटसिमल स्मॉल अमाउंट, वेरी वेरी लेस अमाउंट। मतलब इन दोनों में बहुत कम डिफरेंस है, तो बहुत धीरे 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 बहुत टाइम लेकर के, बहुत सारे स्टेप के बाद ये यहां से यहां तक मूव कर सकता है, राइट, जब इसके और इसके बीच में बहुत डिफरेंस कम है।
और इसी टाइम पे मैक्सिमम वर्क होगा, इसको बहुत काम करना पड़ेगा। और अगर अपोजिंग फोर्स और ड्राइविंग फोर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इसको फटाक से धक्का दिया, यहाँ पे पहुंच गया तो काम कम हो गया। समझ में आ रही मेरी बात? राइट। सो मैक्सिमम वर्क कब होगा? व्हेन वी गेट दिस मैक्सिमम वर्क, व्हेन वी our process, our otherwise transformation of the system takes place in the infinite steps. Just pay attention about this, right? Infinite steps and infinite time also. Sure. Infinite steps or infinite time, right? जब किसी प्रोसेस को होने में इनफाइनाइट स्टेप्स और इनफाइनाइट टाइम लगता है, तब हमारा वर्क कैसा होता है? मैक्सिमम। और इनफाइनाइट स्टेप्स और इनफाइनाइट टाइम कब लगता है? जब हमारा प्रोसेस कैसा होता है? रिवर्सिबल। आर यू एग्री विद दिस? राइट। इनफाइनाइट स्टेप्स कब लगेगा? जब प्रोसेस रिवर्सिबल होगा। रिवर्सिबल इन द सेंस क्या हो गया? यहाँ से यहाँ पे धक्का दिया, फिर से अपनी जगह पे आ गया, तो ऐसे 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 धीरे 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 मूव करेगा। ये बहुत सारा टाइम लगेगा। आपको समझ में आ रहा है? ये स्लोली 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 मूव कर रहा है, लेकिन ज्यादा डिफरेंस हो गया तो ये फटाक से कन्वर्ट हो जाएगा। राइट। तो मैक्सिमम वर्क कब होगा बेटा हमें? जब हमारा जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल होगा, जिसमें इनफाइनाइट स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। अब मैं इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिकली एक्सप्लेन करता हूँ, ग्राफिटिकली एक्सप्लेन करता हूँ मैक्सिमम वर्क का कॉन्सेप्ट। आपको समझा इतनी बात बेटा? यस सर। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे अब मैक्सिमम वर्क का कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने एक सिलेंडर ले लिया, ठीक है, और इस सिलेंडर को पिस्टन से ऐसा बंद कर दिया। गैस है इसके अंदर, राइट, आइडियल गैस है। इसका वॉल्यूम कितना है? V1 ले लिया मैंने, ठीक है। अब इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे वेट रखे हुए छोटे छोटे हैं, बहुत सारे वेट रखे हुए। ऐसे बहुत सारे वेट रखे हुए। ये वेट इसलिए रखे कि यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर इक्वल है, P एक्सटर्नल और P इंटरनल। अब सपोज इसमें से एक छोटा सा वेट मैंने हटा दिया, समझो जरा यहाँ पे, हाँ, एकदम छोटा सा वेट हटा दिया मैंने, ठीक है, छोटा सा वेट मैंने हटा दिया यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे गैस का जो वॉल्यूम है थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा, राइट। यहां से यहाँ पे हुआ, आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे डिफरेंस? यहाँ पे थोड़ा सा हुआ मूवमेंट, राइट। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड व्हाट? डीवी, वेरी कम। एक्सटर्नल प्रेशर कितना हो गया? P माइनस dP। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है जो मैंने अभी तक बताया आपको? बेटा जब एक्सटर्नल प्रेशर बहुत थोड़ा सा कम हुआ dP, तो वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया dV, और फिर से ये इक्विलिब्रियम स्टेज में आ गया अपना प्रेशर जो थे। फिर से एक वेट हटाएंगे, थोड़ा सा और इंक्रीज करेगा, थर्ड स्टेप में थोड़ा सा और स्टेप गया, यहाँ पे थर्ड स्टेप आ गया। यहाँ पे भी कितना डिफरेंस के इससे इसमें डिफरेंस कितना आ गया है? dV आ गया। आपको समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे इंक्रीज करेगा। तो सपोज यहां से यहां तक मैंने डिफरेंस लिया, राइट, यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है। तो यहां से यहां तक जाने में, V2 तक जाने में इसके बहुत सारे dV आए, इनफाइनाइट स्टेप्स हो गए, देन इट इज व्हाट? मैक्सिमम वर्क। तो यहां से यहां तक प्रीवियस जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था, प्रीवियस जो मैंने डेरिवेशन दिखाया था आपको, इन दिस डेरिवेशन
हमने फटाक से चेंज किया, एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दिया, ये बढ़ा दिया, यहाँ पे डी बढ़ गया, यहाँ पे डी वॉल्यूम बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। बट यही चीज अगर मैं दूसरे वे में करने जा रहा हूं, यहां से यहां तक इंक्रीज करने के लिए इनफाइनाइट स्टेप्स मैंने ले लिए, बहुत धीरे धीरे कर रहा हूं, इनफाइनाइट टाइम और इनफाइनाइट स्टेप्स ले लिया। एज आई टोल्ड यू दैट डिफरेंस इज व्हाट कैलकुलेटिव ओनली, नॉट रियल एंड ऑब्जर्वेबल। सो एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर में इतना कम डिफरेंस हो रहा है कि इसका जो मूवमेंट है बहुत कम हो रहा है, ऑब्जर्वेबल नहीं है, रियल नहीं है, बट कैलकुलेटिव है, और इनफाइनाइट टाइम में जाकर के यहाँ पे पहुंचेगा। सो V1 to V2 it will require the infinite time and infinite steps, then we get the maximum work. आपको समझा मेरी बात? राइट, इनफाइनाइट स्टेप्स इन्वॉल्व। सो इसी चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ऐसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकता हूं। लुक एट हियर, सपोज यहां पे आपको समझ में आ जाएगा फटाक से, ये पहला है, ये सेकंड है, एंड हियर इज द थर्ड। P इंटू वी ले लिया मैंने, P इंटू वी ले लिया मैंने, P इंटू वी ले लिया मैंने। ओके, okay, now look at here, here is the pressure and here is the volume, pressure and volume, pressure and volume। बेटा यहां से यहां तक कन्वर्ट हो रहा है, A कन्वर्ट इनटू द B, बट दैट कन्वर्जन टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप। तो इस केस में यहां पे दिस इज व्हाट वर्क P इंटू V, राइट, सिंगल स्टेप प्रोसेस, right? This area is called what? P into V. I hope you understood this part. But second case, in second case, if I'm writing second case, A convert to B, but it required the steps, different steps like 1, 2 and 3. Just consider 3-step process. तो यहां से यहां पे कन्वर्ट हो गया बेटा, ये यहां से यहां पे कन्वर्ट हो गया, ये यहां से यहां पे कन्वर्ट हो गया, ये यहां से यहां पे कन्वर्ट हो गया, ये यहां से यहां पे कन्वर्ट हो गया। स्टेप्स बढ़ गए, वर्क बढ़ गया। आपको चीज समझ में आ रही है? स्टेप्स इंक्रीजेस, वर्क इंक्रीजेस। So we can write here several step process. In this case, A convert to B, infinite steps, infinite steps मतलब आप समझो यहाँ पे infinite steps, तो ये पूरा का पूरा वर्क हो गया, तो डेफिनेटली वी गेट व्हाट? मैक्सिमम वर्क, राइट, इनफाइनाइट स्टेप्स, मैक्सिमम वर्क। समझ में आया मेरी बात? नोट डाउन कर लो इसको। Note down this part. Abhishek, Abdul, Manisha, Priyal, Rubita, Lavrin, Sale, Yukti. Okay, beta. Have noted? Yes, sir. युक्ति आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Little bit. हाँ, लिटिल बिट। अच्छा, लॉन्ग टाइम के बाद आप कर रहे हो ना, राइट? यू आर स्टार्टिंग दिस 12th आफ्टर लॉन्ग टाइम ना? Yes, sir. No issue, no issue. You will understand, huh? What I'm explaining, you will understand, no problem. Huh? Just see, this is the basic part, huh? How we get the maximum work? हमें ज्यादा काम कब मिलेगा? देखो, अगर कोई काम आपने फटाक से 10 मिनट में कर दिया, तो काम कम हुआ इसका मतलब। लेकिन उसी काम को करने में अगर बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है आपको, मतलब आप पूरे दिन तक काम किए, तो वर्क बढ़ गया। उसी काम को आपने 1 महीने किया, मीन्स व्हाट? बहुत ज्यादा वर्क हो गया। तो जितना टाइम और जितना स्टेप्स बढ़ेगा, काम उतना ज्यादा होगा। तो अगर इनफाइनाइट स्टेप्स और इनफाइनाइट
टाइम हो गया, देन वी गेट व्हाट, मैक्सिमम वर्क। तो गैस एक्सपांड करने के लिए यहाँ पे जितनी भी चीजें हो रही है किसके लिए हो रही है, गैस के लिए हो रही है। तो फॉर एक्सपांशन ऑफ गैस, राइट, व्हेन it required infinite steps and infinite time, then we get the maximum work. Is it clear? इतनी बात समझ में आ गई। अब एक डेरिवेशन करेंगे इससे रिलेटेड, मैक्सिमम वर्क से रिलेटेड, ठीक है। नाउ स्टार्ट दिस डेरिवेशन, एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क। चलिए, अब एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में आता है, तो यहां से आप जरा सा नोट डाउन करो अच्छे से, समझो इसको। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस एक्सप्रेशन। हाँ, हो गया? अरे एक्सप्रेशन तो बताया नहीं, कैसे हो गया? नहीं सर, वो ग्राफ हो गया। अच्छा, ग्राफ हो गया, मुझे लगा एक्सप्रेशन तो बताया नहीं, वो कैसे हो गया। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे श्रील, आपको समझ में आ रहा है? यस सर। गुड। एक्सप्रेशन फॉर अब्दुल, अभिषेक, रुबिशा, Yes, sir. लावरीन, Yes, For? sir. यस सर। गुड, फॉर द मैक्सिमम वर्क। यह आएगा एग्जाम में 100%। हाँ, किसी न किसी एग्जाम में तो आ जाएगा, नहीं तो यूनिट टेस्ट में, नहीं तो सेमेस्टर में, नहीं तो प्रीलिम में, नहीं तो बोर्ड में, ठीक है। तो एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क, मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ और इसी को एक्सप्लेन करता हूँ, अब आपको समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। यहाँ सी दिस, ये थर्मोडायनेमिक पार्ट का अच्छे से समझ में आएगा आपको, क्या मैं बता रहा हूँ। आई एम टेकिंग दिस सिलेंडर एज यूजुअल, जैसा पहले लिया था। Okay, and now I'm taking this cylinder, weightless and frictionless, and its cross section area of this cylinder is what, A, as we know that. Here its volume is what, V1, and its pressure, external pressure is what, P1. Just P ले लेते हैं इसको, no problem, that is what, P, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। Here I'm taking this gas, कौन सा गैस ले रहा हूं मैं, N mole of ideal gas। ठीक है, I am taking this what, N mole of ideal gas। हाँ? Ideal gas, ठीक है। Now consider if I'm decreasing the external pressure dV, समझो इसको, अगर मैंने एक्सटर्नल प्रेशर dV डिक्रीज किया तो ये थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, right? So this is what, if I am decreasing the external pressure P minus dP, then gas will expand dV। देखो, अगर गैस का एक्सटर्नल प्रेशर अगर मैंने बहुत थोड़ा सा कम किया dP, तो गैस भी बहुत थोड़ा सा बढ़ेगा, दैट इज व्हाट dV। आपको आ रहा है समझ में? ऐसा करते करते इनफाइनाइट स्टेप्स के बाद, समझो जरा इसको, इनफाइनाइट स्टेप्स के बाद, इनफाइनाइट स्टेप्स, ये सिलेंडर यहाँ पे पहुंच गया, पिस्टन, एंड नाउ इन दिस केस इट्स वॉल्यूम बिकम व्हाट, V2। एकदम अच्छे समझना बेटा, यहाँ पे मैंने अलग अलग डायग्राम नहीं बनाया, एक साथ बनाया। दैट इज व्हाट, V2। इनिशियल वॉल्यूम इज V1, it will reach to the V2, but infinite steps involve, जिसमें dV छोटे छोटे बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है, राइट ना? इतनी बात समझ में आ गई आपको?
right? Say something, yes or no, anyone? Yes, sir. Yes, sir. Good. सब वेट करते हैं एक दूसरे का, कोई एक बोल देगा तो काम हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो, तो कैसे करते हैं, यहाँ पे कंसीडर करते हैं। कंसीडर n mole of an ideal gas enclosed in cylinder with piston, right? Initial volume of gas is V1, right? Now suppose, ध्यान देना आप, पहले इतनी बात समझ लेते हैं, ठीक है? Now see, suppose external pressure decreases by dP, then gas expands and volume increases by dV, ठीक है? एक्सटर्नल प्रेशर हम थोड़ा सा कम करेंगे तो वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा होगा, अगर मैंने डीपी कम किया तो ये डीवी ज्यादा हो गया, ठीक है? अब देखो, देयरफॉर हमें पता है W इक्वल टू क्या होता है बेटा, फॉर्मूला माइनस पी इंटू डेल्टा वी। जरा समझो इसको, या ऐसा लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन, W इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी, राइट? वेयर P is equal to P minus dP and delta V is equal to dV. Are you agree with this? डेल्टा V की जगह हमारा क्या हो गया, dV, और P की जगह क्या हो गया, P minus dP, क्योंकि इनिशियल प्रेशर P था, मैंने dP इसको डिक्रीज किया, तब ये थोड़ा dV इंक्रीज हो गया। तो जस्ट वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, dW is equal to minus P minus dP into dV, राइट है? इसको मल्टीप्लाई करते बेटा इसमें, तो dW is equal to what, मैंने W को भी D लिखा, ध्यान देखना, क्योंकि वहां पे काम भी बहुत कम होगा, वेरी लेस वर्क विल डन। तो इफ आई एम राइटिंग दिस dW is equal to minus P into dV plus dP into dV, आर यू एग्री विद दिस? इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसमें। नाउ लुक एट हियर, एक इंपॉर्टेंट पार्ट, सपोज अगर 5 का मल्टीप्लीकेशन मैं 5 में करूंगा तो क्या आएगा, 25 आएगा। बट अगर 0.5 का मल्टीप्लीकेशन 0.5 में करूंगा तो क्या आएगा, 0.25 आएगा। ये क्यों बता रहा हूं मैं, देखो 5 का मल्टीप्लाई किया तो 25 5 से ज्यादा है, राइट? 25 इज ग्रेटर देन 5, लेकिन इस केस में जब 0.5 का मल्टीप्लीकेशन किया तो 0.25 आया, तो इस केस में 0.25 इज व्हाट, लेस देन 0.5। देखो, ज्यादा का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो प्रोडक्ट और ज्यादा होगा, कम का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो प्रोडक्ट और कम होगा, बस मुझे यही बताना है, ठीक है? अगर ज्यादा अमाउंट का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो प्रोडक्ट और ज्यादा होगा, कम अमाउंट का मल्टीप्लीकेशन करेंगे प्रोडक्ट और कम होगा, ठीक है? मैंने वही किया। अब मुझे ये क्यों बताना था, रीजन ये था यहाँ पे कि बेटा डीपी और डीवी, डीपी खुद बहुत कम है और डीवी भी बहुत कम है, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल, राइट? So right here, product of
dp and dv are very less, consider as negligible. इसको हमने नेग्लिजिबल कर दिया, तो फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया, W इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डीवी। आई होप इतनी बात तो समझ में आ गई सबको। एनी डिफिकल्टी टिल हियर? Yes, रिप्लाई sir. ऑल ऑफ यू। Yes, sir. Yes, sir. क्या डिफिकल्टी है? मतलब समझ में आ गया ऐसा? हाँ सर वही। हाँ वही। हाँ मैंने पूछा कोई डिफिकल्टी किसी को, कोई अभी यहाँ पे अभी तक? मुझे नहीं लगता कुछ होगा। ठीक है, अब देखो इसके आगे का डेरिवेशन बहुत इजी हो जाएगा, फटक से हो जाएगा, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैंने ये एक स्टेप के लिए किया यहाँ पे, एक छोटे से स्टेप के लिए, बट ये मुझे पहुंचना है V1 से V2 तक। क्या आपको बात समझ में आ रही है? मुझे V1 से V2 तक पहुंचना है जहां पे इनफाइनाइट वर्क हुआ है, इनफाइनाइट स्टेप्स और इनफाइनाइट टाइम लगा है। अभी मैंने एक स्टेप के लिए कैलकुलेट किया dw इक्वल टू माइनस पी इंटू डेल्टा वी, बट फॉर मैक्सिमम वर्क जो V2 तक पहुंचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? मैथ्स का फॉर्मूला है, दैट इज व्हाट, इंटीग्रेशन। पता है ना? सारे स्टेप्स को हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तभी तो मैक्सिमम तक पहुंच पाएंगे। यहां तक देखो, यहां से लेकर के यहां तक पहुंचना था, बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हो गए ना बेटा यहाँ पे। तो छोटे छोटे सारे स्टेप्स को मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तभी हम पहुंच पाएंगे यहाँ से यहाँ तक। अभी मैंने ये किया किसके लिए? एक के लिए। ठीक है, तो अभी देखो आगे देखो यहाँ पे, फॉर मैक्सिमम वर्क, यहाँ से चेंज करता हूँ, देखो फॉर मैक्सिमम वर्क, V1 to V2, right? We have to integrate above equation, right? Between V1 to V2, हमें V1 से V2 तक के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। Then we get what? Maximum work. Therefore, we can write here W max. अब समझना यहाँ पे, W max means what? Maximum work, right? मैंने क्या किया? इंटीग्रेट किया, dW ये हट जाएगा अपने आप, इज इक्वल टू माइनस बार लिया, यहाँ पे क्या इंटीग्रेट किसके बीच में? V1 से V2 के बीच में, P इंटू डेल्टा V। क्या अभी तक समझ में आ गया इतना? यस, Yes, sir. वेरी गुड। अब आगे देखो, अब चीजें और आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब क्या होगा? इंटीग्रेट कर दिया मैंने। अब देखो, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, क्या है आइडियल गैस इक्वेशन? PV is equal to nRT, otherwise we can write here P is equal to nRT upon V. We have to substitute the value P, therefore we can get here W max is equal to, इंटीग्रेशन किया मैंने V1 से V2 तक, माइनस P की जगह क्या रखना है? nRT अपॉन, इंटू कर लिया इसको, राइट? सॉरी यहाँ पे dV था, मैंने डेल्टा लिख दिया था बाय मिस्टेक, दैट इज व्हाट dV। तो dV अपॉन V, यही चीज समझ में आ गई आपको? अब क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेट करना है इसको। देखो nRT, n क्या है? नंबर ऑफ मोल, R क्या है? गैस कांस्टेंट, T इज व्हाट? टेम्परेचर कांस्टेंट, राइट ना? तो ये दोनों कैसे कांस्टेंट है, राइट? दिस इज व्हाट? कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट होता है उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, राइट? N, R and T are constant, so इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसको बाहर ले लेंगे। तो therefore what will get here? W max is equal to minus nRT
इट इज व्हाट v1 टू v2 और क्या मिला अपने को dv अपॉन v, मतलब सिर्फ वॉल्यूम को करना है अपने को इंटीग्रेट। चलिए करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला अपने पास, देयरफॉर W max इक्वल टू माइनस एन आर टी, यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग, ln नेचुरल लॉग, राइट ना। किसका कर रहे हैं हम लोग, v का, कहाँ से कहाँ तक, v1 टू v2, राइट है। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसा, माइनस एन आर टी ln v2 माइनस ln v1, या फिर मैं लिख सकता हूँ इसको माइनस एन आर टी ln v2 अपॉन v1, ln इज व्हाट, नेचुरल लॉग। इज इट क्लियर? ठीक है, Yes, आगे sir. करते हैं। Yes, अब ln की वैल्यू क्या होती है, नेचुरल लॉग की log टू द बेस 10 e, e की वैल्यू क्या होती है 2.303 nRT। तो मैं डायरेक्टली ln की वैल्यू रखता हूँ वहां पे। हाँ, क्या मिलेगा अपने को, माइनस 2.303 nRT log टू द बेस 10 v2 अपॉन v1, दैट इज व्हाट W max। ये फॉर्मूला आ गया आपका डेरिवेशन, ध्यान देना यहाँ पे, द v2 अपॉन v1। हाँ, दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला which used for the calculation। ये कैसे आया हमारा, since ln is equal to log to the base 10, ऐसे लिखेंगे, सॉरी, ln is equal to वैल्यू लिखते हैं 2.303 log to the base 10, ये वैल्यू आता है। हाँ, तो यहाँ से मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये आ गया आपको। अब जरा देखो यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, P2 V2, और P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे, V2 अपॉन V1 की जगह हम लोग P1 अपॉन P2 रख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, देयरफॉर W max is equal to minus 2.303 nRT log to the base 10 P1 अपॉन P2। अगर प्रेशर रहेगा तो क्या लिखेंगे, P1 अपॉन P2, वॉल्यूम रहेगा तो क्या लिखेंगे, V2 अपॉन V1। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, राइट। Yes, sir. नोट डाउन कर लो इसको, हाँ, मैं स्क्रॉल करता हूँ, अभी टेंशन मत लो आप। हाँ, एक एक पॉइंट स्क्रॉल करता हूँ, डोंट वरी। Sir, हाँ बेटा, सर ये डेरिवेशन कितने मार्क्स के लिए आ सकते हैं बोर्ड्स में? ये लगभग कभी कभी 2 मार्क्स के लिए और 3 मार्क्स के लिए आता है, कभी कभी 2 मार्क्स के लिए भी आता है या फिर 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। ओके सर, थैंक किसी यू। साल 2 मार्क्स के लिए पूछा है, किसी साल 1 मार्क्स के लिए, या फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आ सकता है, वो भी मैं कराऊंगा। नोट डाउन कर लो इसको, ओके सर। बट थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा डेरिवेशन का। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अच्छे से। ठीक है, इंटरनल प्रेशर डिक्रीजेस, देन गैस एक्सपांड। यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा नोट डाउन कर लो ना, गैस एक्सपांड, यहाँ पे गैस एक्सपांड कैसा एक्सपांड करेगा, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। आइसोथर्मली रिवर्सिबली। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लो।
गया बेटा? Yes, sir. चलिए ठीक है, कौन चला गया अभी? अब देखिए ये दोनों फॉर्मूला से रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल करा देता हूँ आपको। सॉरी, कैसे होगा न्यूमेरिकल देखना है। मैंने दो फॉर्मूले बताए, ये नोट डाउन करके रखो। दो फॉर्मूला मैंने कौन कौन से बताया? पहला फॉर्मूला बताया मैंने, W इज इक्वल टू माइनस P इंटू डेल्टा V, ठीक है, राइट है। और दूसरा फॉर्मूला बताया मैंने, W मैक्स इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log टू द बेस 10 V2 अपॉन V1, या फिर अगर प्रेशर रहेगा तो P1 अपॉन P2, दैट विल यूज। ये दोनों फॉर्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे है? देखो एकदम डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड आते हैं न्यूमेरिकल, कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे कैसे होगा, जैसे एक न्यूमेरिकल, पहले मैं सॉल्व कराता हूँ फिर अनसॉल्व पे जाते हैं। पहले सॉल्व एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है 3 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। हाँ देखो मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ पहले। 3 मोल ऑफ एन आइडियल गैस are expanded isothermally from 15 dm cube to 20 dm cube at constant external pressure of 1.2 bar. Estimate the amount of work in dm cube, bar and joule. जरा समझना इसको। फिर से मैं रीड करता हूँ और गिवन क्या क्या दे रहा है। देखो कभी भी क्वेश्चन पढ़ करके ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, गिवन, देन यू कैन सिस्टमेटिकली सॉल्व। ये 3 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, नंबर ऑफ मोल कितना दिया है? 3 मोल, ठीक है। n इक्वल टू 3 जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं हम लोग। 3 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपांड आइसोथर्मली फ्रॉम, आइसोथर्मली मतलब T कांस्टेंट है वहां पे, फ्रॉम 15 डीएम क्यूब टू 20 डीएम क्यूब। एक्सपांड क्यों हो रहा है, मतलब क्या है? V1 जो इनिशियल इसका वॉल्यूम था वो कितना था बेटा? 15 डीएम क्यूब, और जो फाइनल वॉल्यूम हो गया वो कितना हो गया? 20 डीएम क्यूब, राइट। ये कब हो रहा है? कांस्टेंट प्रेशर पे। प्रेशर इसका कितना है यहाँ पे? P जो एक्सटर्नल है वो कितना है इसका? 1.2 बार है। बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। Then he is asking what is the work? W is equal to what in bar dm cube and joule। इन दोनों में इसका क्या है वर्क? dm cube बार या बार dm cube एंड joule। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, n mole of ideal gas expand isothermally but constant pressure पे। यहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा है? कांस्टेंट है, राइट। और एक्सपांड हो रहा है 15 टू 20 डीएम क्यूब। तो डेफिनेटली फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, राइट। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। देखो यहाँ पे W इक्वल टू क्या बेटा? यहाँ पे माइनस P इंटू डेल्टा V, और डेल्टा V को हम कहते हैं V2 माइनस V1। देखिए अगर बोर्ड में आप जा रहे हो तो एटलीस्ट ये गिवन लिख करके ये मार्क्स, सिर्फ फार्मूला आपने लिख दिया इतना तो भी आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा, राइट। दे विल गिव द हाफ मार्क्स। सपोज ये न्यूमेरिकल आपके लिए 2 मार्क्स के लिए था और 2 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल है, 2 मार्क्स में आपने इतनी पार्ट कर दिया, गिवन तो ठीक है दिया है न्यूमेरिकल में यहाँ पे लिख दिया, बट ये आपको लिख दिया फॉर्मूला तो यहाँ पे आपको हाफ मार्क्स मिल गया। नेक्स्ट आपको सब्स्टिट्यूट करना है, तो W इक्वल टू क्या लिखना है बेटा आपको? यहाँ पे माइनस, देखो W माइनस ही रखेंगे हम लोग क्योंकि यहाँ पे कैसा हो रहा है? एक्सपांड हो रहा है गैस, हाँ इसमें कोई शक नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, प्रेशर कितना है? 1.2 बार है, वॉल्यूम कितना है यहाँ पे? 20 माइनस 15 डीएम क्यूब। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इतना आपने कर दिया, देन यू विल गेट अगेन हाफ मार्क्स। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। W इज इक्वल टू माइनस 1.2 इंटू 5। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट।
Yes, sir. आपको समझ में आ रही चीजें? इतना किया, फिर अब क्या Yes, लिखेंगे sir. यहाँ पे? W इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या मिलेगा अपने को मल्टीप्लाई करने पे? 6.0 यस, minus 6.0. यस, -6.0। ठीक है, अब देखो प्रेशर किस में था बेटा अपना? बार में था। वॉल्यूम किस में था? डीएम क्यूब में था। तो अपना जो वर्क आएगा किस में आएगा? बार डीएम क्यूब आएगा। क्या राइट है क्या? ठीक है, चलो ये नहीं भी लिखा अभी तक, अगर इतना आपने सॉल्व कर दिया तो हाफ मार्क्स और मिल जाएगा। और आपने यूनिट के साथ कर दिया आंसर 6.0, राइट, बार डीएम क्यूब, तो आपको मिल जाएगा हाफ मार्क्स और 2 मार्क्स हो गया। समझ में आया? तो स्टेप वाइज आपको मार्क्स मिलते हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है। एटलीस्ट आपको फार्मूला आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन आ रहा है, इतना भी करके। अभी सपोज कैलकुलेशन सबका स्ट्रांग नहीं होता, ये तो सिंपल कैलकुलेशन ले लिया, सपोज कभी कभी डिफिकल्ट आ जाता है, तो क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है न्यूमेरिकल को। एटलीस्ट यहां तक जाओ, गिवन लिखो, फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, थोड़ा अगर सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज यहां तक भी छोड़ दिया तो जहां पे 2 मार्क्स जाना था वहां पे एटलीस्ट आपको 1.5 या 1 मार्क्स मिल सकता है। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, Yes, sir. हाँ गुड, तो ये मिल गया। अभी भी इसमें एक क्वेश्चन था कि इसको हमने बार और डीएम क्यूब में तो निकाल लिया, बट अभी पूछ रहा है जूल में। ठीक है, तो हाउ टू कन्वर्ट इनटू द जूल, राइट? कैसे करेंगे? तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है 1 डीएम क्यूब बार इज इक्वल टू, राइट, अप्रोक्स में आ जाता है यहाँ पे 100 जूल। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे। तो देयरफॉर W इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे क्या मिल जाएगा अपने को? -600 जूल। इज इट राइट? गॉट इट? Yes, sir. गुड। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल एक देखो, मैक्सिमम वर्क से रिलेटेड न्यूमेरिकल फॉर्मूला कैसे आएगा, न्यूमेरिकल कैसे आएगा वो देखते हैं हम लोग। ये नोट डाउन कर लो, जिसने नहीं किया देख लो, फॉर एग्जांपल कैसे करना है, सिस्टमेटिकली कैसे करना है। लॉग तो आता होगा, नहीं तो मैं लॉग भी बताऊंगा आपको कैलकुलेशन कैसे करने का लॉग से। चलिए आगे देखते हैं एक और न्यूमेरिकल। ठीक है, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे दिया है न्यूमेरिकल, मैं लिखता हूँ इसको, हाँ, तो आपको बेटर समझ में आएगा। दिया है 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंप्रेस्ड, ध्यान देना यहाँ पे, हाँ, कंप्रेस्ड आइसोथर्मली and reversibly at 298 Kelvin from initial pressure of initial pressure of 100 kilopascal when the work obtained is
1.2 किलो जूल। फाइंड फाइनल प्रेशर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड फाइनल प्रेशर। देखिए कैसे सॉल्व करने वाले हैं इसको। पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन की एक बार अंडरस्टैंडिंग आपको आ गई ना, समझ में आ गया क्या पूछ रहा है कैसे करना है, तो आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे कैसे करना है अपने को, समझो। इट इज गिवन हियर 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। अब मैं लिख रहा हूँ गिवन, देखो गिवन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, इज इक्वल टू 22 ग्राम दिया है। ठीक है, और ये कंप्रेस्ड हो रहा है, मतलब गैस क्या हो रहा है, कंप्रेस्ड हो रहा है। इसका मतलब हो गया कि सराउंडिंग वर्क कर रहा है सिस्टम पे, राइट ना। देखो यहाँ पे आप कंसीडर करो यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे है सिलेंडर पिस्टन, और जब ये कंप्रेस्ड कर रहा है तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, राइट। गैस कंप्रेस्ड हो रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, मतलब सराउंडिंग वर्क कर रहा है सिस्टम पे, तो वर्क जो होगा डब्ल्यू जो होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। दिमाग में रखो। देखो व्हाट इज गिवन हियर, कंप्रेशन ऑफ गैस। कंप्रेशन ऑफ गैस मींस व्हाट, डब्ल्यू पॉजिटिव। ऑलवेज रिमेंबर, मैंने लिख के दिया है आपको। ये सब छोटी छोटी बातें आप ध्यान में रखोगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा अच्छे से। गैस कंप्रेस्ड हो रहा है मतलब डब्ल्यू पॉजिटिव हो गया, ठीक है। आइसोथर्मली हो रहा है, रिवर्सिबली। अगर आइसोथर्मली और रिवर्सिबली ये वर्ड आ गया, इसका मतलब कैसा हो रहा है, मैक्सिमम वर्क हो रहा है, डब्ल्यू मैक्स, राइट। ठीक है, एट 298 दैट इज द टेम्परेचर, तो मैं टी ले लेता हूं, 298 केल्विन। फ्रॉम इनिशियल प्रेशर P1 कितना है, 100 किलो पास्कल। वेन वर्क इज ऑब्टेन, डब्ल्यू यहाँ पे दे दिया है, कितना है बेटा यहाँ पे, 1.2 किलो जूल। चीजें आ रही समझ में, राइट है ना। और ये पॉजिटिव ही रहेगा डब्ल्यू, क्योंकि गैस कंप्रेस्ड हो रहा है। पूछ रहा है P2 की वैल्यू क्या होगी। अब मुझे पूरे क्वेश्चन को एक बार समझा रहा हूं। कार्बन डाइऑक्साइड लिया गया है 22 ग्राम। इसका इनिशियल प्रेशर जो था वो था अपने पास 100 किलो पास्कल। इसका P1 था, ये कुछ प्रेशर बढ़ा करके गैस को कंप्रेस्ड कर दिया गया, और अब पूछ रहा है कि फाइनल प्रेशर P2 क्या होगा। गैस के कंप्रेशन में इसमें जो वर्क हुआ वो कितना हो गया, 1.2 किलो जूल एट 298 केल्विन टेम्परेचर, जो कि कांस्टेंट है और आइसोथर्मली रिवर्सिबल। समझ में आ गई इतनी बात? यस, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? Yes, sir. बेटा क्वेश्चन समझ में आ रहा है, मैं बता रहा हूं जो क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको। Yes, sir. ओके देखो अभी तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो यहाँ पे हाउ टू सॉल्व इट। अब हमें पता है कि यहाँ पे मैक्सिमम वर्क का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि आइसोथर्मल रिवर्सिबल है। चलिए, मैक्सिमम वर्क का फॉर्मूला होता है तो हम लोग लगाएंगे डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू, ठीक है, -2.303 nRT log टू द बेस 10। प्रेशर के लिए क्या होता है, P1 अपॉन P2 होता है। ये सबको चीजें समझ में आ गई। अब जरा देखना बेटा, यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीजें हैं और क्या ढूंढना है। हमारे पास W है, हमारे पास N है, N नहीं दिया है। R की वैल्यू हमें पता है, गैस कांस्टेंट क्या होता है, T दिया है, P1 दिया है, P2 निकालना है। N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल। अब देखो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। हाँ, तो N किसका चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का चाहिए। तो देखो नंबर ऑफ moles of carbon dioxide means what, N is equal to what, mass of carbon dioxide upon मोलार मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये फॉर्मूला सबको पता होगा। मास अपॉन मोलार मास इज कॉल्ड व्हाट, नंबर ऑफ मोल। मास दिया है बेटा यहाँ पे W कितना दिया है, 22 ग्राम। मोलार मास कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, निकाल लेते हैं यहाँ पे। देखो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का मास होता है 12, एक ऑक्सीजन का होता है 16, दो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32,
तो 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44। दिस इज द मोलार मास, तो 44 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे 0.5। आई होप अंडरस्टूड। यस, एन Yes, आ sir. गया, एन आ गया, एन आ गया। चलिए रख देते हैं वैल्यू सबको। तो वैल्यू कैसे रखेंगे बेटा, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं ना, देखो ये जो दिया है वो किलो जूल में दिया है, इसको हम जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू 1.2 इंटू 1000 जूल, राइट है। तो जूल में कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो वैल्यू आता है वो जूल में आएगा, तो डब्ल्यू मैक्स ले लेंगे यहाँ पे। तो क्या मिलेगा अपने को, 1200 इज इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल लिखा -2.303। एन की वैल्यू कितनी आ गई 0.5। वेरी गुड। आर की वैल्यू क्या होती है बेटा यहाँ पे 8.314। ये फिक्स है ना, जूल पर केल्विन पर मोल, इनटू टी की वैल्यू क्या है 298 इनटू log टू द बेस 10 P1 अपॉन P2। इसको एज इट इज रखता हूं मैं। P1 क्या है यहाँ पे 100 है, P2 हमें निकालना है, दैट्स ऑल। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, इसको एज इट इज रख के ये सारा मैं इस साइड में ले लूंगा, तो क्या हो जाएगा, देखो सॉल्व कैसे करते हैं सिस्टमेटिकली, जरा ध्यान से देखना। log 10 100 अपॉन P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे -1200, ठीक है, ऐसे ले लेंगे यहाँ पे, सॉरी ये 1200 ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे माइनस है 2.303 इंटू 0.5 इंटू 8.314 इंटू 298, दैट्स ऑल। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, तरीका देखो सॉल्व करने का कैसा होता है। इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, राइट। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे, चलिए इसको कैलकुलेट कर लो थोड़ा सा, कितना आएगा लगभग। देखो यहाँ पे बोर्ड में आप राउंड अप नहीं करेंगे, आप इंट्रेंस में आप प्रैक्टिस किए होते हैं राउंड अप करने का, यहाँ पे नहीं करने का कभी भी। हाँ, रॉन्ग आ जाएगा आंसर, मार्क्स नहीं मिलेगा, हाफ मार्क्स कट जाएगा फिर लास्ट में। ये कितना आ जाएगा, अबाउट 10 के आसपास आ जाएगा। अभी राउंड अप करना होता तो फटाक से 300 कर लेते हैं, हाँ इसको 10 कर लेते, इसको 8 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है, 8 4 12 मीन्स 0.4 के आसपास कुछ आ जाता है। चलो ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ इसको, देखो फटाक से कितना आता है। आई एम गोइंग टू कैलकुलेट इट। वेट, आप भी सॉल्व करो, देखो हो सकता है मेरे से मिस्टेक हो कहीं पे। ओके, लगभग 0.42 आएगा, तो -0.42 ये आ गया इसकी वैल्यू। देखो यहाँ पे log 10 100 अपॉन 32, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लॉग हटाना पड़ेगा। तो लॉग हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड में एंटी लॉग लेंगे, तो अपने आप लॉग हट जाएगा। वी हैव टू टेक द एंटी लॉग इन बोथ साइड, देन दिस लॉग विल व्हाट रिप्लेस। तो क्या करना है यहाँ पे, देखो यहाँ पे टेकिंग एंटी लॉग इन बोथ साइड, तो दोनों साइड लेंगे तो ये लॉग तो अपने आप खत्म हो गया, क्योंकि एंटी लॉग देख लिया। तो यहाँ पे क्या मिला अपने पास 100 अपॉन P2, और यहाँ पे हमें इसका एंटी लॉग देखना पड़ेगा। एंटी लॉग ऑफ व्हाट -0.42। वेरी गुड, राइट। चलिए इसका जब हमें एंटी लॉग देखना पड़ेगा तो हमें वैल्यू लगभग आ जाएगी इसकी 0.3 के आसपास, 37। तो वी गेट दिस व्हाट 0.3797, ये आ गया यहाँ पे। तो फाइनल हमारा आंसर कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 100 अपॉन P2 इज इक्वल टू, ठीक है, 0.3797।
P2 को यहाँ पे लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पे P2 is equal to 100 divided by 0.3797, then we get the final answer. Clear है? About 263 किलो पास्कल आ जाएगा आपका। समझ में आए न्यूमेरिकल? Yes, sir. Yes, sir. All of you understood this part? Yes, sir. Sir, scroll कीजिए ना ऊपर। Screenshot हाँ, लेना है। मैं करता हूँ ठीक है, पूरा नोट डाउन कर लो, आप कोई दिक्कत नहीं। Have done? चलो इसको लॉक करता हूँ, इसको नोट डाउन कर लो इसको, नो प्रॉब्लम। Yes.